امیر معاویہ نے کروایا ہے؟ کس نے بولا؟ یہ آپ کا کہنا ہے؟ ہاں آپ کس نے بولا ہے نا؟ کس نے بولا آپ کو؟ ابھی تو بات ہوئی نا آپ دونوں کے کہا درمیان اس سے میں؟ بات، اس کو جس سے بات ہوئی اس کو دو فون، آپ اس کو فون دو، ہیں؟ جس سے بات ہو رہی ہے نا اس کو فون دو۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ اس کو فون دو نا بھائی، آپ لائن سے ہٹو نا، اس کو دو نا فون۔ آپ یہ کہتے ہیں؟ ارے بھائی آپ مت کیجیے، پہلے اس کو بولا آپ جاؤ، اس کو بولو فون دو۔ بات ختم۔ ہاں ہلو، اللہ نے جواب میں بات ختم کہتے ہو؟ ارے میرا بھائی آپ اس کے فون پہ مت دو نا، اس کو فون دو نا آپ۔ اس کو بولو بات، وہ توترے کو بولو بات کرنے کے لیے، اور توترے کو بولو بات کرنے کے لیے۔ ارے اچھے سے بولو۔ ہاں وہ دیکھو سہیل بھائی آپ کو بات کر رہے ہیں، سہیل بھائی جس کو بولا تھا آپ کو لائن پہ لینے کے لیے، سہیل بھائی سے بات کرو۔ ہاں چلے سہیل صاحب۔ جی جی بولیے بھائی صاحب۔ ہلو، ہاں بھیا بولیے۔ انہوں نے ہاں آپ کو نہیں بولیں گے، سنو جی انہوں نے دعویٰ دیا ہے کہ بٹالی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار کا قتل کروایا ہے۔ تو اس کی دلیل آپ ہمارے الدین بھائی ہیں، ان سے آپ بات چلتے دلیل دے دیجیے۔ ہاں اس سے بات نہیں ہوگا، آپ سے بات ہوگا، اس سے بات نہیں ہوگا۔ آپ سہیل بھائی آپ سے بات کریں گے، اس سے بات نہیں ہوگا۔ سہیل بھائی کی آپ سے بات ہوئی ہے، سہیل بھائی آپ سے بات کریں گے، وہ بات نہیں، اس سے بہت سے جب بات ہوگا تو اس سے بات ہوگا۔ آپ کو بات کرنے کا، آپ بات کرو، آپ بات کرو، آپ سہیل بھائی سے آپ سے بات ہوگی، کچھ نہیں، اس سے بات نہیں ہوگی، اس سے جب بات ہوگی تب بات ہوگی، اس سے بات نہیں ہوگی، آپ سے بات ہوگی، آپ بات کرو۔ ارے تھوڑا سا مطلب مقابل میں کوئی بھی آ سکتا ہے نا۔ ارے میرا بھائی اس سے بات کرو، ٹھیک ہے نہیں، اس سے بات کرو۔ آپ بات کریں گے ہلو، ان فوٹو پہ، جب دعویٰ کرتے ہو تھوڑا تیز بولیے گا، آواز کم آ رہی ہے آپ کی، بولیے کیا کہہ رہے ہیں؟ آ سکتا ہے۔ ہاں یہ آپ تو لنچ پہ جاتا یہ چائلڈ تو پہلے آپ چائلڈ تو لنچ پہ جاتا یہ۔ ہاں آپ نے کیا بولا بھائی، آپ نے کیا بولا؟ آپ نے بولا کہ میں نے سہیل بھائی کا 25 منٹ کا ویڈیو یوٹیوب میں اپلوڈ کیا ہے، تو میں نے کیا بولا؟ سہیل بھائی سے بات کراؤ، کیوں آپ نے اپلوڈ کیا؟ سہیل بھائی نے کیا غلطی کیا آپ کی؟ آپ کو سہیل بھائی سے بات کرنے کے بجائے وہ بھائی کو لائن پہ لے کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کی ہماری کیا بات ہوئی تھی؟ آپ نے کیا بولا؟ سہیل بھائی کے بات کو میں نے یوٹیوب میں اپلوڈ کر دیا ہوں۔ ٹھیک ہے، سہیل بھائی کو آپ لائن پہ لو، میرے سے نہیں ہو رہا تو صرف سہیل بھائی کو میں نے لیا۔ سہیل بھائی کا ویڈیو میں آپ نے یوٹیوب میں اپلوڈ کیوں کیا ہو؟ سہیل بھائی کو بتاؤ آپ کیوں کیا تھا؟ عوام کو پتہ نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا ہے آپ نے کر دیا۔ ارے چلو، سہیل بھائی نے کیا غلطی کیا؟ سہیل بھائی نے کیا غلطی کیا تو آپ نے یوٹیوب میں اپلوڈ کیا؟ یہ بات کلیئر کرو۔ وہ تو عوام فیصلہ کر لیتی۔ کیا کرے گی عوام؟ کیا مارے گی کہ سہیل بھائی کو عوام مارے گی؟ نہیں ارے بھائی عوام کا سیدھا درست ہو جائے گا۔ ارے تو ہاں، تو عوام کا درست کیسے؟ سہیل بھائی نے کیا غلط کیا ہے؟ کیا غلط بات کی تھی پہلے یہ میرے کو بتاؤ۔ ارے بھائی پلیز بات پہ پوائنٹ پہ بات کرو۔ میں فون ڈالوں یا بات کرو تو میں چاہیے سے بات نہیں کرتا ہوں۔ ہاں تو پہلے آپ یہ بتاؤ نا، آپ نے بولا نا 25 منٹ سے سہیل بھائی کا ویڈیو اپلوڈ کیا ہوں، کیا وجہ تھا؟ کیوں اپلوڈ کیا؟ تمہارے ٹائم کیوں اپلوڈ کیا؟ کیوں اپلوڈ کیا آپ نے؟ کیا غلطی کیا انہوں نے وہ بتاؤ نا۔ میری مرضی۔ چلو ٹھیک۔ سہیل بھائی کیا غلطی کیا تھا آپ نے؟ میں ہندوستان میں آزاد ہوں، مجھے ہلو، ہندوستان کی گورنمنٹ نے آزاد کیا ہے۔ ارے ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کر رہے ہیں، منع نہیں کر رہے، اس کے لیے ٹھیک کیا آپ نے۔ آپ مطلب جو ہے بات ہوئی ہے، آپ جو ہے سر منظر ڈال سکتے ہیں، اس کا لیے کوئی وہ تھوڑی ہے آبجیکٹ۔ ہاں تو سنو سہیل بھائی۔ جی بتائیے۔ سہیل بھائی جی اب آپ سے اور مولانا ضیاء الدین صاحب سے بات ہوئی تھی، عمار بن یاسر کا تعطیل دون ہے، حضرت عمار موضوع پہ بات ہوئی تھی۔ ہاں بس اس کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہوئے تھا۔ ہاں منظور ہے؟ ارے منظور کیا؟ میں بولوں نا
ना हैं? आलम बीच में बोले था। हाँ। मैं बीच में बोला, सुन लो, मैं बीच में बोला तो मेरी हमारी शिद्दत हुई थी। आलम बोला तो पूरी मौलाइयत की शिद्दत लीती जाएगी। बोलो मंजूर है? देखिए मौलाइयत तो जो है हर वो कलमा गो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है बोलो मौलाइयत पे नहीं, तुम वो मौलाई है। अम्मार पे दीजिए अम्मार पे बात करना चाहोगे या नहीं? हाँ या ना में बोलते नहीं तो लंबी मत करो, टाइम नहीं है। ये बताइए, सुनिए, This call is now आप ये being कहते हैं कि recorded. नहीं कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया हजरत अम्मार के कातिल हैं? ये कहते हैं कि नहीं? एक बात बोलूं हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या हम्म? क्या 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 जवाब चाहिए? आप हजरत ये कहते हैं कि हजरत अम्मार का कातिल हजरत अमीर मुआविया हैं? हजरत ये जो मुआविया है ये तो खिलाफत राशदा के बागी है ना वो तो। मौला अली अलैहिस्सलाम की जब खिलाफत हुई तो अमीर मुआविया जो है उसने खिलाफत राशदा का से बगावत की ना, और खिलाफत राशदा से बगावत करने वाले कौन हुए? चलो उस पर भी बात हो जाएगी। अभी सिर्फ इतना बताइए कि आप हजरत ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं क्या कि हजरत अमीर मुआविया ने हजरत अम्मार का कत्ल किया है? ये तो कहते हैं? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं तो बागी कहता हूँ ना। अमीर मुआविया को अहले सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है वो बगावत का है, खिलाफत राशदा से मुआविया का बागी है वो। मौजू का इंतखाब किया गया है, तेज बारिश वो हो रही मौजू यही है। हैं? हजरत अम्मार बिन यासिर का कातिल कौन? हजरत अमीर मुआविया है क्या? बकौल बुखारी में सुनेंगे आप? मौजू यही है ना? हाँ तो मैं बोलूं? हाँ तो पहले आप ये तो बताएं कि आप कातिल कहते हैं कि नहीं कहते हैं हजरत अमीर मुआविया को? नहीं, मुआविया ने हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जंग सिफ़ीन में मुआविया की गिरोह ने ही कत्ल किया। और सुनो, मुआविया की कत्ल किया या कत्ल करवाया, इस पर बात हो रही है। वो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हजरत अमीर वो आदमी बात कर रहे हैं ना, हजरत मुआविया ने कत्ल करवाया, कान में इस पर बात हो रही है। ठीक है, हम बंदे लोग बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आप सिर्फ इतना जवाब दें कि हजरत अमीर मुआविया ने कत्ल किया कि नहीं, या हजरत अमीर मुआविया ने कत्ल करवाया कि नहीं, सिर्फ इतना बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि अमीर मुआविया का जो लश्कर था वो जो है खिलाफत राशदा का बागी लश्कर था। मौला अली इस्लाम की खिलाफत से बगावत की और उस अंजाम में मुआविया ने जो जंग की, जंग सिफ़ीन, इंतखाब किया है, जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो बगावत या बागी लश्कर का होना नहीं है, बल्कि हमारा मौजू है हजरत अम्मार बिन यासिर को कत्ल करने वाले हजरत अमीर मुआविया है या कत्ल करवाने वाले हजरत अमीर मुआविया, ये हमारा मौजू है। ठीक है, मैं इस पे जवाब ठीक दे। है, ठीक है। हाँ तो आप ये बताइए कि हजरत अमीर मुआविया ने कत्ल किया या हजरत अमीर मुआविया ने कत्ल करवाया, क्या कहते हैं आप लोग? ओके, मैं बता रहा हूँ। जिस तरह से यजीद मलून ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया, उन पर जो है जुल्म किए, आले रसूल पर जुल्म किए, उसी तरह अमीर मुआविया ने हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलील कद्र सहाबा है, उनको कत्ल करवाया और उन पर जो है जुल्म किए, और जो है उनकी जो पेशगोई नबी पाक ने की थी हजरत अम्मार को लेके कि तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगी, वो जहन्नुमी होगी, तो बागी गिरोह का सरगना अमीर मुआविया था। ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है साफ साफ। ये बताइए तो जो इल्जाम यजीद पर जाता है वही इल्जाम सहाबी है। सिर्फ इतना बताइए, हजरत अम्मार सहाबा हैं या सहाबी हैं? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलून सहाबा में से, और उनका मकाम व मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक बहुत जो है आला है। हजरत अम्मार सहाबा हैं, तो हजरत अम्मार सहाबा हैं या सहाबी हैं, क्या है? अब आप जो भी मतलब निकालते रहो, मैं तो जो किताबों में लिखा है वही बताऊंगा। वो देखो बंदा कैसा घुमा रहा है, वो सहाबा और सहाबी में आदमी को कंफ्यूज कर रहा है। तो करने तो मैं जवाब दे रहा हूँ उनको जी। वो कैसा कंफ्यूज कर रहा है, वो आप देखो उसको, उन्हें जितना इल्म है उतना ही तो वो बात करेंगे ना। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी तरफ से बीच में कोई ना बोले। जी जी हाँ, बात करिए।
ٹھیک. اور یہ آپ نے جو کہا کہ جس طرح یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کروایا، اسے امیر معاویہ نے قتل کروایا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کس کا؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی دلیل؟ کس کی دلیل؟ کس کی دلیل چاہیے؟ یہی جو آپ نے ابھی بات کہی ہے، اس کی دلیل نہیں، کلیئر بات کریں نا، کس چیز کی دلیل چاہیے کہ معاویہ جو ہے؟ آپ نے کہا نا، ابھی آپ نے کہا کہ جس طرح یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کروایا، ویسے ہی امیر معاویہ نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کروایا اور ان پر ظلم کیا. یہ آپ نے کہا ہے نا؟ بالکل بالکل. ہاں، تو اس پر کوئی دلیل؟ جس طرح یزید نے آل رسول پر ظلم کی اور ان کو جو ہے مظلومانہ شہادت کی ہے ان کی کروائی قتل کیا، وہ جو دلیل یزید کو لے کے، وہی دلیل یزید کے باپ معاویہ کو لے کے. اس پر کوئی دلیل پیش کیجیے آپ. ایک نہیں، 50 دلیل ہیں. آپ پہلے بتائیے کون سی دلیل تو آپ مانیں گے نہیں؟ کیوں دلیل نہیں ہے؟ اس کو بولو نا جنگ صفین پڑھ لے. نہیں، دلیل ہے، اس کو کیا معلوم؟ آپ جو ہے کتابوں کو مانیں. کون سی کتاب مانیں گے پہلے بتائیے. آپ جانب سے کوئی بیچ میں نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، میری آپ سے بات ہو. آپ بتائیے، آپ کو میں دلیل کیوں دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابہ کا جو قاتل ہے وہ اندھوں کو بھی دکھ رہا ہے. کتابیں جو پڑھی ہیں، جو کتابیں ہماری سیاہ ستہ کی ہیں، سب میں لکھا ہے. اس کے باوجود جو ہمارے بزرگان دین ہیں انہوں نے بھی اپنے جو ہے آپ لوگوں کی سیاہ ستہ کیا ہے؟ ہماری کیا سیاہ ستہ کیا ہوتی ہے؟ کتابوں کو آپ سیاہ ستہ مانتے ہیں؟ سیاہ ستہ آپ لوگ کن کتابوں کو مانتے ہیں؟ آپ کن کو مانتے ہیں؟ آپ بتائیے نا، آپ لوگ سے کیا مطلب ہے؟ آپ لوگ یعنی کہ روافض وغیرہ. نہیں، آپ ہمیں رفافظ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رفافظ تو معاویہ تھا نا، اس نے خلافت راستہ کو جو ہے بغاوت کی. وہ جو خلافت راستہ سے باغی کرنے والے ہیں وہ رافضی کہلاتے ہیں. تو معاویہ اس کو ماننے والے رافضی ہوئے نا. ضرور ہوگی. ابھی آپ نے کہا نا ہماری سیاہ ستہ، ہماری سیاہ ستہ سے کیا مراد ہے؟ سیاہ ستہ آپ بتائیے نا. آپ سیاہ ستہ نہیں مانتے ہیں؟ کوئی سیاہ ستہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہماری سیاہ ستہ میں ہے ایسا؟ تو بتائیے نا. آپ نہیں ہے، آپ بول دیجیے نہیں ہے. آپ بول دیجیے نہیں ہے بخاری میں. تو آپ دکھا دیجیے نا. ہم کیوں دکھائیں؟ آپ عالم ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ تحقیق کریے اور حق اور باطل کو جو ہے. پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ میں تو ہوں پڑھا لکھا، اس لیے تو بول رہا ہوں نا میں. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا؟ جب پڑھے لکھے ہو تو پھر دلیل بھی دیجیے. آپ اگر پڑھے لکھے نہ ہو تو آپ بتائیں مجھے، تو میں آپ کے پاس دلیل دوں گا اور آپ کے پاس آ کر کتاب لے کر آپ کو ایک نہیں 50 کتابیں جو ہماری ہیں ان کتابوں سے آپ کو پڑھا دوں گا. کتاب کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، صرف اور صرف ایک دلیل آپ دے دیجیے سر اپنی بات پر. کون سی؟ صرف اور صرف ایک دلیل اپنی بات پر جو آپ نے بھی کہی ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 1228 ہے، اس کو پڑھ لیجیے. اگر پڑھے نہ ہو آپ تو کسی اور سے پڑھوا لیجیے گا. دلیل آپ دے رہے ہیں، میں پڑھوں، میں کسی سے پڑھواؤں؟ جب آپ دلیل دے رہے ہیں تو آپ خود ہی پڑھیں نا. تو جب آپ کچھ پڑھے نہیں ہیں، آپ کو کچھ ماننا نہیں ہے تو پھر آپ کیسے پڑھیں گے نہیں؟ اگر آپ پڑھیں گے. سہیل بھائی ایک منٹ رک جائیے. او مولوی سنیے، حق تلاشنا آپ کو ہے نا، ڈھونڈنا کھوجنا تلاشنا آپ کو ہے نا. انہوں نے جو آپ سے بتا دیا 50 کتاب کی دلیل ہے تو ڈھونڈیے، تلاشیے، کھوجیے. وہ غلط نہیں کہہ رہے، سمجھے نا. ڈھونڈنا تلاشنا آپ کا کام ہے. بس انہوں نے جو بولا ہے حق بولا ہے، سچ بولا ہے. اس بات کی دلیل ابھی جو نا کیا سلمان ندوی صاحب نے بھی دیا ہے، سمجھے کہ نہیں. 50 کتاب میں 100 کتاب میں لکھا. ڈھونڈنا تلاشنا کھوجنا آپ کا کام ہے، ان کا کام ہے. انہوں نے دے دیا، فکر آپ کو دے دیا. جا کر ڈھونڈتے رہیے، کھوجتے رہیے، ٹھیک ہے. ہمارا کام ہے تلاش کرنا. دلیل آپ دے، تلاش ہم کریں. ارے دلیل دیا تو جا کر ڈھونڈیے نا. ہم آپ کے نوکر ہیں کہ آپ کے لیے اپنا میوہ بنا کے آپ کے سامنے پروس دیں. ڈھونڈیے، تلاشیے، کھوجیے، آپ کا کام ہے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ اس کتاب میں ہے، جا کر ڈھونڈیے. جب آپ دلیل دے رہے ہیں تو دلیل دے رہے تو جا کر ڈھونڈیے نا. حق تلاشنا آپ کے کمرے میں آپ جائیے گا، وہ جائیں گے وہاں نہیں جائے. آپ کو ڈھونڈیے نا، تلاشیے نا، کھوجیے نا. کتاب کے فلاں صفحے پر ارے تو بتا تو رہے، وہ 50 کتابوں کی دلیل آپ کو دیں گے. واٹس ایپ نمبر دیجیے، سب ایک ساتھ میں آپ کے ساتھ میں کتاب کا نمبر آ جائے گا. سمجھ میں نمبر بھیجیے، واٹس ایپ نمبر بھیجیے. ایک ایک کتاب کا نمبر آپ کے دلیل کے ساتھ میں آئے گا آپ کو. آپ کے نمبر پر ابھی کال جو آئی ہے اسی نمبر پر آپ حوالہ بھیجیں.
हाँ तो नंबर देगा ना आपको, लेकिन सबको तो हवाला देगा, लेकिन आप ढूंढिए, तलाशिए, खोजिए। आपको बताया गया है, ढूंढने की किताबों के अंदर मौजूद है, तो ढूंढना, तलाशना, खोजना आपका काम है कि तो बता दिया गया वो किताबों के अंदर में, तो ढूंढिए, तलाशिए, खोजिए। और नहीं आप ढूंढ सकते, नहीं तलाश सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो व्हाट्सएप नंबर दीजिए। एक एक किताब के आपके हवाले के साथ में आएगा। अहले सुन्नत जमात की जो मोतबर किताब, उनके नाम, मुहद्दिस का नाम, मौरिक का नाम, सबके साथ में आएगा, कहाँ पे लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप सफा भेज दीजिए, बात खत्म। ना मैं ठीक है, वो सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, समझे ना। ढूंढना, तलाशना, खोजना, तहकीक करना, उसको आपका काम है, समझ गए। हमारा काम है, जब दलील आप दे रहे हैं तो आप ही अरे तो दलील दे रहे हैं ना, बोल तो रहे वो सोहेल भाई किबला आपको बताया तो सही। जब भी कोई भी कहता है कि ये फुला किताब में लिखा हुआ है, तो मद्दे मुकाबले उसका मुतालबा करता है कि आप दिखाएं कहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ तो आप मद्दे मुकाबला करते रहिएगा, ढूंढते रहिएगा, जो आपको समझना हो, जो आपके जहन में समझ में आएगा, आप समझते रहिएगा। आपके समझने ना समझने तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जहाँ लिखा हुआ वो लिखा हुआ, जाकर पढ़ लीजिएगा। बात नहीं है, बल्कि ये जहालत का बय्यन सबूत है। क्या बता, हवाला मांगा जा रहा है तो आप तो बुखारी आपके सामने जाहिल है, मुस्लिम जाहिर है, लेकिन मुस्लिम सही सित्ता की जो 6 किताबों सब जाहिल है। अहले सुन्नत की जितनी मोतबर किताबें 100-150 किताबें सब जाहिल है। आप सबसे बड़े आलिम है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। अरे मेरा भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। यानी सही सित्ता की जितनी 6 किताबें, सब के सब जितने मौरिक है वो सब जाहिल है, वो सब जाहिल है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं। एक मिनट, तो ताल्लुक से 100, 150, 200 किताबें हैं जो उन्होंने सोहेल साहब ने बताया आपको, समझे ना। वो सब के सब मुहद्दिस जो है, सबसे सब मौरिक जो सब जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, जिन्होंने किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, वो सब जाहिल। आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलिम है। वो भेज दीजिए बस, सिर्फ। और ठीक है ना, वो भेज देते, वो बोलिए, नंबर भेजिए। आप का मुतालबा नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं आप 50 किताबों का हवाला पेश कर सकते हैं। बिल्कुल है, आप डूब जाओगे उसमें, वो निकल ही नहीं पाओगे उसके अंदर में, आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा उसके आगे, समझे ना। आप भेजिए ना, आप कम से कम, फिर आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा उसका। अरे अल्लाह के रसूल, उसके आगे जवाब ही नहीं रहेगा। समझ में मेरी बात। यही तो तहलका मच गया अभी लखनऊ के अंदर में। सैयद सलमान रश्दी साहब ने उसी बात का पर्चा खोल दिया तो पूरी हाहाकार मच गई है उसकी, समझे ना। हम लोग को तो पता भी नहीं था उसमें। आप हवाला तो पेश कीजिए पहले। अरे मेरा भाई, अभी आप यूट्यूब खोलिए, लेकिन नहीं, हवाला तो मैं भेज दूंगा आपको। खाली सैयद सलमान जो नदवी साहब, उनका यूट्यूब खोलिए, देखिए, आपको 1 से किताबें आपको मिलेगी वहाँ पे। मैं ना तो आपको हवाला बता रहा हूँ, आप हेलो, एग्री कर रहे हो, अलग बात है। आपको समझना नहीं है, जानना नहीं है, वो अलग बात है। हेलो आलम साहब, आलम साहब, एक मिनट जी, आप थोड़ा सा इनसे मैं बात करना चाहूंगा। ये जो बात कर रहे हैं अपने भाई, क्या नाम है इनका? हाँ, जियाउद्दीन साहब, मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाफरमान है आपके नजदीक, वो क्या है? कौन नाफरमान है? जो भी नाफरमान है, कोई भी हो, XYZ, जो भी नाफरमान है, कोई भी हो, किस तरह की नाफरमानी है ये तो क्या नाम नाफरमानी कौन सी ऐसी बात कही है, उस बात को सुनने के बाद, उस बात को देखने के बाद में फैसला किया जा सकता है ना। अरे मैं तो ये हम किसी को नहीं कह सकते ना, जब तक क्या नाम उसकी असल बात को ना देखें। चलो ठीक है, मैं ये कहता हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि जो आपके पीर साहब हो, आप जिनके भी मुरीद हो, अगर आपके पीर साहब आपके किसी मुरीद भाई को बुलाएं और आपका मुरीद भाई उनके पास ना बोल दे मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, तो क्या उस मुरीद के लिए आपके दिल में अपने उस पीर भाई मुरीद के लिए इज्जत रहेगी? क्या बोल, दोबारा से बोले, दोबारा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कोई आपका पीर भाई है, आपका पीर भाई जो है, और आपके पीर भाई को और आपको आपके जो पीर साहब हैं जिनसे आप मुरीद हैं, अभी जिनसे मुरीद हैं आप, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी जिनसे मुरीद हैं, वो आपको बुलाएं, उसके बाद आप जो है, आपका जो पीर भाई है वो उनके पास जाने से इनकार कर दे, बहाना बना दे, अभी नहीं आ रहा हूं मैं, 2 बार नहीं 3 बार बुलाएं, उसके बाद भी वो ना जाए, तो क्या आपकी अपने उस पीर भाई के लिए इज्जत रहेगी दिल में, जिसने आपके पीर भाई के बुलाने पर वो नहीं गया? अगर वो कोई माकूल उज़्र पेश नहीं करता है या उनका बुलाना कोई जरूरी काम के तहत था फिर भी वो हाजिर ना हुआ, या हुक्म था फिर भी हाजिर ना हुआ, या और उसने कोई माकूल उज़्र भी पेश नहीं की, जाहिर सी बात है उसको बुरा भला कहा जाएगा। लेकिन अगर उसके पास कोई माकूल उज़्र हो या पीर साहब का हुक्म ना था, यूं ही
बुला रहे थे। नहीं, आप खुद बुलाने गए ना, मैं तो बोल रहा हूँ आप खुद बुलाने गए ना, पीर साहब ने आपसे बुलवाया तो उसको बुला के लाओ। तो अगर उसके पास कोई उज़्र है तो फिर क्या? फिर मिसाल के तौर पर अगर आप ही के पास में कोई उज़्र हो, मैं आपको कॉल करूं, आप कॉल ना उठाएं। अरे कॉल वाली बात नहीं, मैं सीधा से ये बोल रहा हूँ, मैं सीधा, अरे मैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मरीज बैठे हुए हैं, अरे वो हम बैठे हुए हैं जी, तो आपको मैं कॉल कर रहा हूं तो आप कॉल उठाकर मुझसे बात करेंगे। हाँ। ये देखेंगे कि यहाँ पर मरीज हैं, उनको तकलीफ होगी, आप चलो। क्या पहले सोचेंगे? चलो पहले मेरी आप इस बात का जवाब दो, मैं नॉर्मली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीर की बात कर रहा हूँ। मेरे जो पीर हैं, कहते हैं ना पीर में अल्लाह का जो है वो जो है अल्लाह दिखता है हमारे पीर में। हमारे पीर जन्नत की गारंटी है, जो आपके पीर हो, जो मेरे पीर हो, जिनको हम अभी अपना दुनिया पीर मानते हैं यहाँ का, जो अभी हमारे पीर हैं, जिनसे हम मुरीद कहते हैं। किसी पीर को मानता ही नहीं। आप किसी से मुरीद नहीं है? गारंटी देता हूँ। आप किसी से मुरीद नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे पीर का न तो मुरीद हो सकता हूँ और ना ही किसी ऐसे पीर के पास जा सकता हूँ जो ये कहे कि तुम कुछ भी करते रहो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखता है। चलो ठीक है। ऐसे पीर के पास जा सकता हूँ ना मुरीद हो सकता हूँ। अभी तो आप मुरीद हैं ना अपने पीर के, किसी पीर साहब से मुरीद हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो और आपके कुछ और साथी भी उनसे मुरीद होंगे? जाहिर सी बात है। तो आपके पीर साहब आपको हुक्म दें कि बेटा एक काम करो, उस शख्स को जो है लो बुलाओ और उससे मुझे थोड़ा सा काम करवाना है, कोई भी काम उसको सौंपना है। आप तो अपने पीर साहब की जो है नाफरमानी करेंगे नहीं, तुरंत जाएंगे बुलाने के लिए, जी हजरत अभी जा रहे हैं। आप सारे काम छोड़ के दौड़ लगाएंगे, मैं होऊंगा तो मैं भी दौड़ लगाऊंगा। अब मैं पहुंचता हूँ अपने साथी के पास और पूछता हूँ, सुनो यार भैया, और पीर साहब ने जो है बुलाया है और आप चलिए, बहुत अर्जेंट बुलाया है। उसके बाद वो बोलेंगे ठीक है, पीर साहब से बोलो कि हम थोड़ी देर में आते हैं। आप लौट गए, पीर साहब ने पूछा क्या हुआ बेटा, आपने कहा वो थोड़ा मसरूफ है, थोड़ी देर में आने के लिए बोल रहे हैं। पीर साहब रुक गए, आधे घंटे बाद चुकी, फिर पीर साहब ने कहा कि अब बेटा फिर बुला के लाओ उसको। फिर आप गए, उसके बाद उसने बोला कि नहीं अभी हम नहीं आ सकते, थोड़ा सा अभी हम व्यस्त हैं, फिर आते हैं। उसके बाद पीर साहब ने पूछा क्या हुआ बेटा, आपने कहा वो अभी जो है मसरूफ है किसी चीज में, उन्होंने मना कर दिया आपके पास आने से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, 3 बार तो बुलाना चाहिए ना, तीसरी बार भी उन्होंने भेजा आपको, उसके बाद भी आपका जो मुरीद है वो नहीं आया, तो मुझे यकीन है कि पीर साहब से पहले आप अपने मुरीद पे झल्लाओगे, यार तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, पीर साहब बार बार बुला रहे हैं, ऐसा कोई अर्जेंट काम नहीं है, बैठे हो तुम, क्या जा नहीं सकते हो, यही तुम्हारी मोहब्बत है अपनी पीर के लिए, तो क्या करोगे? अभी आप यहाँ पर 2 बातें कर रहे हैं, एक कह रहे हैं कि कोई अर्जेंट काम नहीं, मजीद 2 मरतबा। अरे अर्जेंट काम है भाई, पीर बुलाएंगे तो अर्जेंट काम के लिए बुलाएंगे ना। जब आप उस शख्स को जिसको बुलाने के लिए मैं जा रहा हूँ, के बारे में आप कह रहे हैं कि उसने कहा मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, फिर आपने दोबारा कहा कि बता दीजिए मैं मसरूफ हूँ थोड़ा। ठीक, जाहिर सी बात है जब बंदा सामने वाला बंदा मसरूफ है किसी काम में, और अगर कोई बार बार जा रहा है फिर भी वो कह रहा है कि मैं मसरूफ हूँ, इसका जाहिर मतलब यही है कि वो किसी खास काम में मसरूफ होगा। ठीक है आपके लिए हो गया ना ये। पहली मर्तबा में ही आप साथ में चला आता, लेकिन जब वो किसी खास काम में मसरूफ है और वो उसके पास कोई माकूल इज़्र भी है, उसके बाद और मैं बार बार जा रहा हूँ फिर भी वो नहीं आ रहा है, तो कह रहा है कि मैं भी व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, और वो वाकई व्यस्त हो, मसरूफ हो, बिजी हो, फिर वो क्यों कर आएगा? नहीं, वो कुछ नहीं करता, घर में बैठा है, वो कुछ व्यस्त ही नहीं करता, उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, घर में है आराम से, नहीं आ रहा, वो बहाने बना रहा है। पीर साहब जानते भी हैं और कि ये बहाने बना रहे हैं, आप भी जानते हो, आपने भी आंख से देख लीजिए जाके। आप पहले अपनी बात को वाज़ेह करें, आप बताएं क्या ऐसे क्या करेंगे, आप बताइए पहले, आप ऐसे पीर भाई का साथ देंगे, अपने पीर का साथ देंगे? बैठा हुआ है, कम से कम कोई एक बात तो आप कहें, 2 बातें एक साथ में ना कहें। नहीं, एक ही बात कह रहा हूँ मैं, एक ही बात कह रहा हूँ, आप 2 बातें निकाल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले आपने ये कहा कि नहीं कि उसने कहा मैं मसरूफ हूँ। हाँ, मसरूफ का मतलब बहाने बनाना है ना, घर में है, आपने देखा कि वो घर में है, लेकिन वो कह रहा क्या दो अभी हम मसरूफ है। बनाना नहीं होता है, मसरूफ का मतलब बहाने बनाना नहीं होता है। फिर क्या होता है? अब मैं हूँ कि कोई बुलाए मुझे नहीं जाना है तो क्या बोलूंगा, मैं नहीं आ रहा, मैं बोल दूंगा अभी नहीं आ रहा है, तो काम है हम बाद में आएंगे, यही कहूंगा ना मैं। आप भी यही कहोगे अगर आपको किसी के पास नहीं जाना होगा तो? जाएगा ना है? तो हुक्म कब लगेगा? हुक्म कब लगेगा? जब हमें पता होना कि वाकई किसी काम में मसरूफ नहीं है, हाँ, तो हुक्म लगाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जब हमें शक हो या मालूम ही ना हो कि वो वाकई व्यस्त है या मसरूफ नहीं, फिर बहाना बना रहा है, तो फिर हम शक और क्या नाम गैर यकीनी बात पर कैसे हुक्म लगा सकते हैं? नहीं, और अगर यकीन हो गया आपको तब
वो पीर साहब को? जब यकीन हो जाए मैं उसके पास जाऊं, वो आराम के साथ लेटा हुआ हो। नहीं अरे अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पीर साहब की बात कर रहा हूँ। पीर साहब को बिल्कुल यकीन हो जाए कि वो पीर साहब उसको देख रहे हैं कि ये घर में फ्री है, उसके बाद भी नहीं आ रहा है, तो पीर साहब जो है फिर क्या करेंगे? कैसे यकीन होगा? पीर साहब को कैसे यकीन होगा? कैसे यकीन होगा? क्योंकि पीर साहब उससे मिल के आए, वो फ्री था वहाँ घर में, थोड़ी देर के बाद बुलाया पीर साहब ने उसको। हाँ, और आप भी उसका साथ दे रहे? नहीं, आप भी पीर साहब ने देखा नहीं तो पीर साहब को यकीन कैसे होगा? अरे तो आप भी फिर जो है अपने उस झूठे मुरीद का झूठे पीर भाई का साथ दे रहे हो, पीर के जो है नाफरमानी करने वाले का आप साथ दे रहे हैं, और जो है आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, फिर तो आप भी जो है खारिज हो जाएंगे मुरीदी से। सिर्फ आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। नहीं दे रहे, आप भी मुरीदी से खारिज हैं। उस वक्त लगेगा, सुनिए, हुक्म उस वक्त लगेगा जब मुझे पूरे तौर पर यकीन हो जाए। हाँ तो यकीन है ना, यकीन है पूरे तौर पर, यकीन पीर साहब को यकीन है पूरे तौर पर, पीर साहब को यकीन है पूरे तौर पर। पीर साहब यकीन कैसे होगा? पीर साहब ने देखा क्या उसको? अब ये पीर साहब का मामला है ना, उनको यकीन है, उनको यकीन है, पीर साहब को यकीन है, वो बोल रहे हैं जाओ, वो फ्री है, बुला के लाओ। कैसे होगा? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा फिर पीर भाई भी झूठ बोल रहा पीर साहब, फिर दोनों लोग मुरीदी से खारिज हो गए। पीर साहब को यकीन होने के लिए कम से कम अपनी मसनद से उठकर उसके पास जाकर देखें। हाँ वो क्या नाम, कोई फैसला या हुक्म सुना सकते हैं ना। हाँ तो पीर साहब देख के आए ना, पीर साहब देख के आए उसको, पीर साहब देख के आए, मैं तो कह रहा हूँ देख के आए पीर साहब। अभी थोड़ी देर पहले पीर साहब उसको वहां से निकले, देख के ही उसको आए हैं, तभी पीर साहब ने बुलाया उसको कि बुला के लाओ, से बैठा है फालतू काम है कुछ। तो अगर पीर साहब थोड़ी देर पहले देखकर आए हैं, क्या थोड़ी देर के बाद में कोई शख्स किसी काम में मसरूफ नहीं हो सकता है? तो बस ठीक है, मेरे पास से गुजरे और आपने देखा कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो फिर अचानक मुझे कोई काम याद आ जाए, मैं काम करने लगूं और आप किसी को भेज दें अपने पीछे जाकर बुला कर लेकर आओ, तो मैं जब मसरूफ हो गया तो मैं उससे क्या कहूंगा? भी नहीं तो आप यही कहोगे ना, ठीक है पीर साहब हो गए, पहले हमें काम करने दो, पीर साहब के पास हम तो बाद में हो लेंगे, कोई जरूरी नहीं है पीर साहब के पास जाना। यही सोच हुई ना, जाहिर सी बात यही सोच हुई कि पीर साहब को अहमियत नहीं दे रहा है मुरीद। इंसान हो वो अपना कुछ खास काम छोड़कर पीर साहब के लिए नहीं जा सकता। बिल्कुल आपने सही कहा ना कि वो अपने खास काम को अहमियत ज्यादा दे रहा है, पीर को अहमियत नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसा पीर ऐसे मुरीद को ऑटोमेटिकली अपनी मुरीद से खारिज कर देगा। वो मुरीद कहलाने के लायक नहीं है, वो मुरीद कहलाने के लायक नहीं रहेगा, और जो बंदा उसको बचा रहा है वो भी जो है मुरीदी से खारिज हो जाएगा। इसी तरह अब एक हदीस सुन लीजिए, आप रुकिए, अभी आप रुकिए। वजह दोनों के मुरीद ना होने की वजह अभी आप सुन लीजिए ना, देखो वो मुरीद भी गया और जो उस मुरीद को मुरीद बचा रहा है वो भी गया, दोनों खारिज हैं, दोनों खारिज हैं। वो खुद को चाहे मुरीद कहते जाए दुनिया में, लेकिन वो खारिज हो चुके हैं, पीर साहब ने उनको खारिज कर दिया है, पीर साहब की नजरों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पीर साहब की नजर में वो झूठे हैं, वो बहानेबाज है। पीर साहब ने इसका ऐलान किया कि मैं उन दोनों को अपने पीरी मुरीदी से खारिज करता हूँ। बिल्कुल नाराजगी, बिल्कुल पीर साहब नाराजगी जताएगी ना, पीर साहब नाराजगी जताएंगे, पीर साहब ये भी नाराजगी जता रहे हैं कि जो भी इसका साथ देगा वो भी खारिज है। जताने से, नाराज होने से कोई मुरीदी से खारिज नहीं हो जाता है। पीर साहब ने मुरीद किया, पीर साहब ही खारिज करेंगे ना, और किसी की क्या हिम्मत है? मुरीद अपने पीर के खिलाफ वर्जी या जिन बातों पर अमल करने को कहा उससे रूगर्दानी न कर ले। जब पीर का कहना नहीं मान रहे हो तो पीर की बात, पीर के बताए हुए रास्ते पर अमल क्या करोगे? जब पीर का एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो तो पीर के बताए हुए रास्ते पर चलोगे क्या? वो तो बहुत बड़ा मुश्किल रास्ता है। जब छोटा सा काम नहीं कर पा रहे, पीर साहब कह रहे आओ मेरे पास, तब तुम आ नहीं रहे हो पीर साहब के पास, तो उनके बताए हुए रास्ते पर पूरी जिंदगी अमल कैसे करोगे? नहीं कर सकते। पीर साहब जानते हैं, इसलिए पीर साहब को उस मुरीद का साथ देने वाले को खारिज कर, अमल किन बातों पर करना लाजिम है, खारिज कर दिया पीर साहब ने खारिज कर दिया। अब चाहे जितना अपने आप को किन बातों पर लाजिम है, बता, अमल करना किन बातों पर लाजिम है? पीर साहब ने जो आपको दीन का रास्ता दिया है, जो पीर साहब ने आपको अल्लाह के रसूल का रास्ता बताया है, उस रास्ते पर पूरी जिंदगी चलना है, ये पीर की वफादारी। रसूल का रास्ता क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता क्या है जिन पर चलना जरूरी है? यही तो है जो पीर साहब कह रहे हैं आओ मेरे पास। अब पीर साहब के पास जब मुरीद जाएगा तभी तो वो बताएंगे ना रास्ते पे चलना कैसे है, सही रास्ता है या कहाँ गलत रास्ता है। रास्ता है क्या? आओ मेरे पास आओ मेरे पास, ये अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है। नहीं तो आपके पीर क्या वो शैतान का रास्ते के लिए बुलाएंगे क्या आपको? आप ये बताएं, आपने कहा ना। नहीं आप बताएं ना, आप बताएं ना, तो आपके जो पीर है वो आपको शैतान के रास्ते पर बुलाने के लिए कहते हैं कि आओ इधर।
रसूल का रास्ता, आओ मेरे पास में। भाई जितने भी पीर आपको मुरीदों को अपने पास बुलाते हैं या पीर साहब के पास जो मुरीद बैठते हैं, वो अल्लाह अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलने के लिए अपने पीर की नजर की तरफ, अपने पीर के चेहरे की तरफ मुतवज्जो होते हैं, उनके एक एक अमाल की तरफ मुतवज्जो होते हैं। जरा सा उनको ये लगता है पीर साहब जरा सी बात पे भी जो है हमसे खफा ना हो जाए, वो बिल्कुल हाथ बांधे खड़े रहते हैं पीर साहब के सामने, सर झुकाए खड़े रहते हैं पीर साहब के सामने। जो अभी आपके पीर है ना, आप उनके सामने सर झुकाए खड़े रहते होगे। अगर पीर साहब ने कह दिया उड़ जाओ तो उड़ जाते होगे, पीर साहब ने कह दिया बैठ जाओ तो बैठ जाते होगे। यही मुरीद का पीर का जो है रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, और जो इस पे अमल ना करे वो पीर ही उसको। आपकी बात से कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं है तो ठीक है ना, आप कुछ भी करो, कोई ताल्लुक है और ना ही मेरे सवाल से कोई ताल्लुक है। ताल्लुक है ना, आप भी समझ रहे हो ताल्लुक है, आप भी समझ रहे हो ताल्लुक, इसलिए आप घुमा फिरा के जो है आप पीर जो है अपने उस मुरीद की बचाव कर रहे हो। आपने जो अभी कहा इन बातों का कोई ताल्लुक है और ना ही मेरे सवाल का इससे कोई ताल्लुक है। सोहेल भाई सुनिए सोहेल भाई, ताल्लुक है, आप एक्सेप्ट करें। एक मिनट ताल्लुक है, आप अपने मुरीद भाई को बचाना चाह रहे हैं, आप अपने नाफरमान मुरीद भाई को बचाना चाह रहे हैं पीर की नजर में, इसलिए पीर आपके सब देख रहे हैं, पीर ने आपको भी खारिज किया, आपके मुरीद को भाई को भी खारिज किया। बल्कि मैं सही रास्ता और बात समझने के बाद, अच्छी तरह समझने का और यकीन होने के बाद ही फैसला कर सकता हूँ। किसी भी आलिम के लिए जायज नहीं है कि वो बगैर यकीन किए हुए किसी चीज का फैसला कर दे। अरे आप तो आलिम की बात कर रहे हैं, तो पीर तो आलिम से बड़ा होता है ना। पीर तो आलिम से बड़ा होता है, आलिम बड़ा होता है कि पीर बड़ा होता? किसने कहा कि पीर आलिम से बड़ा होता है? तो छोटा होता है आपकी नजर में पीर। आप आलिम है तो आप अपने पीर से बड़े होंगे, तो जो आपके पीर होंगे। बसा औकात कोई पीर ऐसा होता है कि उसका मुरीद उससे कहीं बढ़कर होता है। हाँ बिल्कुल, आप तो अपने आप अपने पीर से अपने आप को बढ़ के मानते होंगे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बिल्कुल। मैं नहीं मानता हूँ, मैंने अरे आप ही ने कहा ना कि मुझे मुरीद आलिम तो जो है वो पीर से बढ़ के होता है कई जगह, तो आप अपने पीर साहब से बढ़ के हैं। अब मुझे आपके पीर साहब का नाम याद नहीं ना, मुझसे गलती हुई, मैं पूछता आपके पीर साहब कौन है, कहाँ से मुरीद है, तो मैं आपके पीर साहब को रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, कहता कि आपके मुरीद साहब कह रहे कि मैं अपने पीर साहब से भी बढ़ के हूँ, मैं पीर साहब के बुलाने पर नहीं आऊंगा, पीर साहब को जो है क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, पीर साहब मुझे ऐसे कैसे बुला सकते हैं अपने पास। यही जहालत है कि अपनी तरफ से गढ़कर दूसरों की बातों को पेश करते हो। मेरे भाई आपने खुद कहा, मेरे भाई मैंने कुछ नहीं कहा, आपने खुद कहा कि पीर मुरीद हो सकता है कोई मसरूफ हो, वो नहीं आना चाह रहा हो, पीर साहब को क्या पता वो मुरीद क्या कर रहा है। आपने सब बातें कही है और दूसरों से जो नफरत करने लगे, आपने सब बातें कही है मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने अपने मुरीद को बचाने के लिए अपने पीर पर ही जो है आपने नाफरमानी कर दी। क्या मैंने कब कहा कि मैं अपने पीर से बड़ा हूँ? अरे आपने नहीं कहा, मैंने कहा आलिम बड़ा के पीर, मैंने नहीं कहा आलिम बड़ा के पीर, कहा मैंने। कितना बड़ा झूठा आदमी वो देखो। अभी मैंने आपसे सवाल किया था ना कि आलिम बड़ा के पीर, तो उसके जवाब में आपने क्या जवाब दिया था उसके सवाल पे? अभी झूठा है सोहेल भाई, वो देखो कहाँ घूम रहा है, कितना बड़ा झूठा आदमी, खुद बोल के खुद ही मुकर रहा है। आप क्या बताएं, जब ये अपने मुरीद को बचाना चाह रहे हैं भाई को, पीर भाई को, तो खुद ही बोल के खुद ही फंस गया है, खुद बोल के खुद फंस गया है। लेकिन कितना बड़ा झूठा फरेबी आदमी वो। झूठा कौन है? मैंने ये कहा था कि बसा औकात मुरीद पीर से इल्म में बढ़ जाता है। बस ठीक है, तो यही तो कहना चाह रहा था कि आप बड़े हैं अपने पीर। अब आपके पीर के मुझे नाम पता होता तो आप निकल के रिकॉर्डिंग 2 मिनट में आपके पीर साहब आपको खारिज कर देते, गारंटी से कह रहा हूँ मैं, गारंटी से 2 मिनट में आपके पीर साहब आपको मुरीदी से खारिज कर देते कि तेरी गुस्ताखी कैसे हुई मुझसे अपने आप को बड़ा कहने की। तो फिर जो तुझसे छोटा हो, जो तुझसे, जब तू मुझसे बड़ा है तो किसके अपने से बड़े से मुरीद हो? पीर ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पीर ऐसे हैं कि इन जैसे मक्कारों, भंगियों और राफियों और शियाओं की बातों का कतई तौर पर कभी यकीन नहीं करेंगे। तो आपके पीर ही नहीं है फिर वो, जो सच बात को ना माने, जो जाहिरी बात को बिल्कुल कानों की सुनी बात को ना माने, फिर वो पीर ही नहीं। जब फासिक की गवाही मकबूल नहीं है तो तुम जैसे राफजियों की गवाही कैसे मकबूल हो? आपको कैसे पता मैं राफजी हूँ? आपको कैसे पता मैं राफजी हूँ? कैसे पता आपको बताइए, आप साबित करिए मैं राफजी हूँ। किस पे करता हूँ? अभी किया मैंने, अभी मैंने किसी के सब खत्म किया, आप साबित करिए पहले। अगर आपने साबित ना किया तो ये अल्फाज आप क्या आप साबित करिए कि मैं राफजी हूँ और मैंने किसी साहबी पर सब कुछ खत्म किया है। आप साबित करिए, अगर ना कर पाए तो ये सब आप पे जाएंगे।
معاویہ کو باغی کہنا یہ سب و شتم نہیں ہے. یہ ہم اپنے امیر معاویہ کو باغی کہنا یہ سب و شتم نہیں ہے ان پر. باغی کہا نہیں جا رہا ہے. امیر معاویہ باغی ہے کیونکہ اس نے مولا علی کی خلافت جو خلافت راشدہ ہے، خلافت راشدہ ہے، ان کی خلافت کا اعلانیہ جو ہے اس نے جو ہے وروध کیا، اس نے اعلانیہ خلافت کا انکار کیا، اس نے اعلانیہ اپنی الگ سے حکومت چلانی شروع کر دی. یہ سب کتابوں میں لکھا ہے. اور آپ اگر ایسے شخص کا جو ہے آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی خلافت راشدہ کے باغی ہیں، آپ بھی خلافت راشدہ کے منکر ہیں. کیا حضرت امیر معاویہ کی فوج میں تنہا تنہا صرف حضرت امیر معاویہ ہی صحابی تھے؟ اب بات صرف معاویہ کی ہو رہی ہے. آپ حضرت طلحہ کی بات نہ کر رہے ہیں، حضرت زبیر کی بات کریں، ان کا معاملہ الگ ہے. آپ معاویہ کی بات کریں، بغاوت معاویہ نے کی ہے، حضرت طلحہ حضرت زبیر یہ بہت آپ کو گھمائے گا، بہت گھمانے کی بات کر رہے تھے نا، وہی کیجیے. گھمانے دو اپنے. آپ کہہ رہے ہیں نا تو ظاہر کی بات ہے جو سپاہی ہوتے اپنے سردار کے ماتحت رہتے ہیں. ہاں تو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں کوئی اور صحابی نہیں تھا؟ میں صرف معاویہ کی بات کر رہا ہوں کہ خلافت راشدہ جس طرح جو حضرت ابوبکر کی خلافت کے جو منکر تھے اور جو حضرت عمر کی خلافت کے جو منکر تھے، حضرت عثمان غنی کے جو ہے منکر تھے ان کو بلوائی کہا گیا، اور حضرت عمر کے منکروں کو، خلافت کے منکروں کو، باغیوں کو جو ہے وہ کہا گیا، مرتد کہا گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو منکر تھے خلافت کے ان کو جو ہے منافق اور مشرک اور کافر کہا گیا، اور صحابہ اکرام نے ان کو قتل بھی کیا. اسی طرح یہ معاویہ نے جو خلافت کی جو منکر کی ہے، بغاوت کی ہے خلافت راشدہ کی، اس لحاظ سے تینوں خلیفاؤں کے لحاظ سے یہ بھی جو ہے باغی ہے، اور اس پہ مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے اس کی بغاوت پہ، جبکہ ان تین خلیفاؤں کی بغاوت کرنے والوں پر مہر نہیں لگی، لیکن اب معاویہ کی بغاوت پر مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے کہ یہ باغی ہے. انکار کس نے کیا حضرت ابوبکر عمر و عثمان کی خلافت کا؟ ایک نام ان کا سدرا سب کچھ کتابوں میں لکھا ہے. اب آپ نہیں مانو گے نا کیونکہ معاویہ کو بچانا ہے نا. آپ بیان کر رہے ہیں نا تو آپ نے کہیں پڑھا ہوگا تبھی تو بیان کر رہے ہیں، یا اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں اپنی طرف سے بیان کرنے والا؟ جو پڑھوں گا اپنی کتابوں میں وہی تو میں جو ہے بولوں گا نا. پڑھے ہو تو کہاں پڑھے ہو؟ یہ کہاں پڑھے ہو؟ اب آپ پھر عالم ہی نہیں ہے، پھر ہم بیکار بات کر رہے ہیں آپ سے. اب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں آپ کی بات ہی نہیں کرنا. سہیل بھائی اس کو جو پیر مرید کی بات کیے تھے نا اس کو ایگزامپل دو نا. وہ اپنے پلیٹ فارم سے کہاں نکل گیا؟ پیر مرید کا ایگزامپل دو پہلا اس کو. نہیں اب تو اس نے کہہ دیا نا کہ وہ اپنے پیر سے بڑا ہے. انہوں نے کہہ دیا یہ اپنے پیر سے بڑے ہیں. ایک منٹ سہیل بھائی ذرا خاموش رہے، میں بولتا ہوں. کیا بولا آپ نے؟ او مولانا سنیے، کیا بولا آپ نے؟ نقوی صاحب کی ویڈیو دیکھو، اس میں کئی سارے حوالے ہیں. کون نقوی؟ ارے ابھی کوئی نقوی سے بات ہو رہی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے؟ او بھائی او زیادہ بڑبڑ مت کیجیے. آپ سے بات ہو رہی ہے کہ نقوی صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ تم نے کیا جا کر نقوی صاحب پھر تم تب مت کرو یا لہجے میں آپ سے بات ہو رہی ہے، تم تب مت کرو، جہالت اپنا پیش مت کرو. آپ سے بات ہو رہی ہے نا کہ وہ کوئی نقوی سے بات ہو رہی ہے؟ محبت سے علمی بات کریے، علمی بات کیجیے، بدتمیزی میں بات مت کیجیے. آپ جہالت میں بھی تمہاری جہالت نظر آ رہی ہے. پھر تمہارے بریلویوں میں یہی سکھا جاتا ہے کیا لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا؟ بدتمیزی تم لوگ ہی کر رہے ہو. پھر تم لوگوں تمہارے پورے بریلوی پہ خدا کی لعنت ہو، بات کرنے کا تمیز نہیں ہے بڑے سے. جیسے راجیوں بھنگیوں پر پھر راجیو کس کو بول رہے ہو؟ جملہ ناس کا تم لوگوں پر لعنت ہو. ارے وہ تو چلو بات کرنے کا نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، چلے آئے بات کرنے کے لیے. بھائی صاحب ایک منٹ ہوگی، بھائی صاحب آپ سے بات کر رہا ہے، پھدک کے ادھر جا رہے ہو، پھدک کے ادھر جا رہے ہو، پھدک کے ادھر جا رہے ہو، پھدک کے ادھر جا رہے ہو. ایک پلیٹ فارم پہ بات کرو. آپ کس پوائنٹ پہ بات کر رہے ہو؟ مقابلے میں آنے والوں کو کہا ہے کہ ہم ان کو کس کو مقابلے میں کہا؟ وہ جو سہیل بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں وہ تو بہت قاعدے سے بات کر رہے ہیں. اس کو راضی کہہ رہے ہو، جاہل کہہ رہے ہو. آپ کو تمیز ہے بات کرنے کی؟ ہاں جب حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تمیز ہے، ڈسپلن ہے بات کرنے کی؟ کسی بریلوی عالم کس جاہل مولوی نے آپ کو پڑھایا ہے؟ ارے ایک منٹ تو بول رہے تو. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلو کہنے والے. ہاں بتائیں، آپ ہم سے بتائیے. آپ بھائی صاحب آپ پلیز تھوڑا رکیے، تھوڑا میں بات کر رہا ہوں، ان سے بات کر رہا ہوں، علمی بات کر رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ مجھ سے علمی بات کریں گے محبت یہ متعین کر لیں کہ آپ کتنے حضرات بات کریں گے. نہیں میں یہ متعین کر لیں. نہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں میں آپ سے بات کر رہا کریں گے. ہوں. آخر تک آپ ہی کریں گے. ہاں میں ہی کر رہا ہوں نا بات. آخر تک آپ ہی بات کریں گے. ارے اور کون کرے گا بھائی؟ میری آپ سے بات ہو رہی ہے نا معاویہ کے جو ہے اس کو لے کے، تو میں بات کروں گا. 3 لوگ سے آ چکے ہیں.
नहीं 3 लोग नहीं, वो तो देखो सब लोग शामिल होते हैं। कोई जब इल्मी बात होती है तो इल्मी बात होती है तो लोग शामिल होते हैं उसमें, वो भी इल्म हासिल करना चाहते हैं ना। तो इल्मी बात अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो इल्मी बात कर सकता है उसको कॉल दे। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जो हाँ इल्मी बातें होती हैं वहाँ लोग उसमें शामिल होते हैं, वो जानना चाहते हैं क्या बात भैया हो रही है, वो इल्म को जानना चाहते हैं, हकीकत को जानना चाहते हैं, इसलिए हमारे आपके बीच में इल्मी बात हो रही है। वो हमारे भाई वहाँ पर सुन रहे हैं, वो हम गलत कहेंगे तो वो हमें कहेंगे सोहेल भाई ये गलत है। अगर आप बोलोगे कि ये गलत है तो वो आपको गलत कहेंगे कि नहीं हजरत ये गलत है। इसमें किसी की मतलब वो नहीं है। आप को चुन दीजिए जो आप में से इल्मी बात कर सकता हो, ठीक है। कोई एक बात करे आखिर तक, बीच में कोई इधर से कूदे कोई उधर से कूदे कोई इधर से आए, तो ऐसा ना हो। कोई एक शख्स रहे और आखिर तक बात करे वही। चलो सिंगल बात करना चाह रहे हो, सिंगल बात करो ना, ना हो तो कोई मसला नहीं है। चलो सिंगल बात कर लो, मुझसे सिंगल बात कर लो, ठीक है। आखिर तक रहेंगे आप ही ना। लेकिन शर्त ये है कि आप इज्जत से बात करेंगे। अगर आपने मुआविया की तरह गाली गलौज की तो मैं बात नहीं करूंगा। अगर आप सहाबा कराम को बुरा भला कहेंगे जाहिर सी बात है आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। सहाबा हमारे सर का ताज है, हमारे आंखों का जो है सहाबा कराम के जो है पैरों की मिट्टी, हमारी जो है आंखों का सुरमा। सुनिए आप सुनिए, लेकिन जो सहाबा है आप मुनाफिकों को अगर सहाबा कहेंगे तो फिर ये जो है कुरान के खिलाफ आप बात करेंगे, इसलिए मैं फिर आपसे बात नहीं करूंगा। दौराने तकल्लुम किसी भी सहाबी या किसी भी शख्स पर सब्बो शतम नहीं करेंगे। अगर कहेंगे तो अदब का लिहाज करके कुछ बोलेंगे। तो मैं पहली बात बता दूं, कोई भी हो। ओके मैं पहली बात बता दूं आपको, बताऊं अब मैं शुरुआत कर दूं। बोलो। अगर आप मुआविया को सहाबी मानते हैं तो फिर आपसे बात नहीं हो सकती, क्योंकि मुआविया खिलाफत राशिदा का बागी है। मुआविया अहले बैत अतार पाक अलैहिस्सलाम को सबको सितम करवाने वाला है। मुआविया सुनिए, पूरी बात तो सुन लो पहले, पूरी बात सुन लो पहले, फिर आप बात करना। मुआविया को अगर आप सहाबी मानते हैं और मुआविया को आप बोलेंगे ये सहाबी है, तो वो जो है मुआविया खिलाफत राशिदा का बागी है, और जो खिलाफत राशिदा का बागी होता है वो सहाबी नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि मुआविया वो शख्स है जिसने जो है मौलाए कायनात और आले रसूल पर जो है मेंबरों से तवर्रा करवाया, गाली गलौज सब्बो सितम करवाए। ये सब हमने पढ़ा है, हमारी अहले सुन्नत की किताबों में सब लिखा है, मैं खुद पढ़ चुका हूँ। तीसरी चीज ये है कि मुआविया वो शख्स है जिसने जो है जिसके लिए हजरत नियामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जो खलीफा हैं उन्होंने फरमाया अपनी किताब सियारुल औलिया में कि मुआविया ने ही मौला अली के कातिल को भेजा, और ये जो अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम है ये मुआविया का भेजा हुआ कारिंदा था। सियारुल औलिया में साफ साफ इतना सब कुछ पढ़ने के बाद और इतनी तहकीक करने के बाद मैं ऐसे मुनाफिक को सहाबी नहीं मान सकता जो सहाबी है ही नहीं। अब आप लोग उसको सहाबी कहेंगे तो फिर वो आप लोग जाने, और मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपका हसर मुआविया के साथ ही हो, मुआविया अपने अबू सुफियान के साथ। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। आपकी बात जी आप बताइए आप। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हजरत मुआविया को सहाबी मानता हूँ और वो कतई यकीनी तौर पर सहाबी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि मेरा हश्र अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत मेरे मुआविया के साथ ही फरमाए। आमीन 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 आमीन। आपका हस्र मुआविया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। आमीन। आपका हस्र मुआविया इब्न अबू सुफियान के साथ हो। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन आमीन। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे वो मंजर दिखाए कयामत का कि जब आपका हस्र मुआविया के साथ हो रहा हो। सुना है वैसे ही आप भी मेरी बात को खामोशी से सुने। आपको आमीन बोल रहा हूँ ना, मैं आपकी दुआ में शामिल हो रहा हूँ। हाँ बस आपने फिर कहा कि इतनी सारी तहकीक के बाद मैंने किताबों में खुद पढ़ा है ये, मैं किसी ऐसे को सहाबी नहीं मान सकता हूँ। वो सहाबी है ही नहीं तो क्यों मान लूंगा? खिलाफत राशिदा का बागी सहाबी कैसे हो सकता है? आप ये बताइए कि ये किन किताबों में लिखा हुआ है? आपने अहले सुन्नत का, आप अहले सुन्नत से क्या मुराद लेते हैं? अहले सुन्नत से मुराद क्या है? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करे उसी को तो सुन्नी बोलते हैं, या जो नबी पाक के जो है दुश्मनों की सुन्नतों पर अमल करे वो सुन्नी हुआ, वो तो नाज़बी और राजी हुआ, वो खारजी हुआ। आपने जो अहले सुन्नत कहा है इसे आप शिया या राफिदी मुराद ले रहे हैं या नहीं? कहा नहीं हूँ, मैं ही असली सुन्नी हूँ। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला सुन्नी हूँ। ठीक है, अहले सुन्नत वल जमाअत ये लफ्ज हर फिरका अपने लिए इस्तेमाल करता है, वो लेकिन सुन्नतों पर अमल नहीं करता है। वो सुन्नतों पर अमल नहीं करता है, वो सुन्नतों पर अमल नहीं करता, वो झूठे हैं, वो जो उनका दावा झूठा है। वो अहले हदीस
हो, देवबंदी हो, खारजी हो या बरेलवी हो, कोई भी हो, हर फिरका अपने लिए अहले सुन्नत वल जमाअत का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो बचाव के लिए तो कहेगा ना। आपने ये जो कहा है अहले सुन्नत वल जमाअत, इससे आप राफजी या शिया कुछ मुराद नहीं ले रहे हैं ना? अरे इससे शिया और राफजी वाली बात ही क्या हुई भैया? सुन्नी वो हुआ जो नबी पाक और अहले बैत अज़हर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करे, वही तो सुन्नी हुआ। और कौन सी डेफिनेशन? हर फिरका अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करता है। मैं किसी फिरके का नहीं हूँ, नहीं, मैं किसी फिरके का नहीं हूँ। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नबी पाक का उम्मती हूँ, अहले बैत अज़हर पाक अलैहिस्सलाम का चाहने वाला, उनसे मोहब्बत करने वाला, जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, और मुसलमान हूँ जैसा कि अल्लाह ने मुझे नाम कुरान में दिया है। आप बताइए आगे। ठीक है, बस अब आपने कहा कि मैंने किताबों में पढ़ा है, तो आप ये बताइए किन किताबों में ऐसा इस तरह पढ़ा है हजरत अमीर मुआविया के बारे में? और जो आपने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के किसी मुरीद का हवाला दिया है ना, उनके खलीफा, वो भी जो है सादात हैं जी, उनके खलीफा का आपने हवाला दिया है, तो आपने ये कहाँ पढ़ा है, किन किताबों में पढ़ा? आप हवाला दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, दीजिए। मैं तो ये भी दुर्र मंसूर में तो ये भी लिखा है कि मुआविया को नमाज पढ़ना नहीं आता था, उसने गलत नमाज पढ़ाई, तो साहबी रसूल ने उसको टोका और कहा, मुआविया तुझे इस तरह से नमाज जो है तूने पढ़ाई है, क्या तुझे जो है नमाज पढ़ाना नहीं आती? हवाला दीजिए आप। दुर्र मंसूर हवाला भेजिए ना। अभी भेजते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। अरे भाई दो ही है कि नहीं है? अरे हम हैं, सब लोग हैं। अब दुर्र मंसूर के लिए हजरत ने हमसे जो है हवाला वो कह रहे आप पढ़ के सुनाइए, तो मैं थोड़ा सा किताब ढूंढ लूं, उसका जो है किताब मेरे पास सब मौजूद है मेरा भाई। नहीं, इनको डूब जाएगा, इतना हवाला दूंगा ना वो निकल ही नहीं पाएगा। नहीं, पहले इसका तो दे दूं मेरे पास में, लेकिन रोड पे खुद किताब लेके बैठे थोड़े, ठीक है नहीं, सब है मेरे पास मौजूद। भेजिए आप हवाले। हाँ, एक नहीं 100 किताबें है, वो हवाले में डूब जाएगा, वो हवाले में डूब के निकलेगा भी नहीं, वो सारी किताब मौजूद है। पहले बात तो कीजिए। मत बोलो यार, मैंने कहा था कोई बीच में ना बोले, हमारी और बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपके दरमियान बात हो रही है, बात नहीं हवाले की बात हो रही है। जब तक मैं हवाले जो है निकाल रहा हूँ, तब तक ये जो है बात कर रहा हूँ। लफ्ज पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। सुनिए, हवाले की बात ना बोले, अब्दुल्ला भाई आप ना बोले बीच में। इनसे लफ्ज पूछ लीजिए, कौन सा ना बोलिए, हवाला बोल रहे थे। अब्दुल्ला भाई आप बीच में ना बोलिए, भेजने दीजिए हवाला। याद नवाज
دیجیے तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ. हेलो. हाँ वो कट गया मेरे से इधर से. अच्छा. हाँ वो बात हो रही थी कट गई. अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं देख रहा हूँ. हेलो हेलो हजरत. अरे अब्दुल समद भाई गए हो? हेलो, गए क्या वो? लगता है कि निकल गए हो. फिर से लगाए क्या? उनको हवाला मिला तो भाग गए. हाँ वो भाई वाले हो वो 202 में लगाइए ना पहले. उसी में लगा रहे हैं. अरे अब ये क्या होता है, हवादार ढूंढो वो भाग जाते हैं. एक मिनट. वो अच्छा पीरी मुरीदी का पॉइंट अच्छा पकड़ा था आपने. हाँ हाँ, वो उसी में तो फिर वो समझ गया था ना, तो इस उधर भाग रहा था वो. हाँ मैं लगा रहा हूँ. लगा दूं. फोन पे तो है वो. तो हो गया होगा ना बेटा. इधर रखा है, इधर रखा है बेटा. सबा आओ थोड़ा सा इधर. अरे अरे समद भाई आप हैं क्या? हेलो. भाग गया लगता है. भाग गया. तो लगा तो रहे हम फोन जो है. भाग गया लगता है. लग नहीं रहा. हाँ. With has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को